Welcome to Inside News. Let's get into the details. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Desai attended the foundation laying ceremony for the new government medical college, using the occasion to highlight the state's development as it completes 25 years. He also referred to the recent visit of the Prime Minister, noting that the inauguration of the new assembly building and the launch of the tribal museum in Nawa Raipur marked important milestones for the state. The Chief Minister encouraged citizens to visit the newly inaugurated museum and experience the landmark firsthand, emphasizing its cultural and historical significance. शुभकामना आप सबला मालूम है कि 1 नवंबर हमारे प्रदेश के स्थापना दिवस, वो दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में रहीन, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर में रहीन। और वो दिन हमारे नया जो विधानसभा भवन बन के तैयार है ओकर भी लोकार्पण करीन, और एक ट्राइबल म्यूजियम बहुत अच्छा बने हैं। आप मन से मैं आग्रह करूं कि कभी रायपुर जाके वाला समय निकाल के देखना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समाज के जो महापुरुष हुए, जो अंग्रेज मन के साथ में लड़ाई लड़ीन, ऐसे 14 ठन क्रांति हमार छत्तीसगढ़ के अंदर हुई, और ओकर सचित्र चित्रण ये ट्राइबल म्यूजियम में पूरा डिजिटल म्यूजियम है। आपन वहां बटन दबाहा तो पूरा वो महापुरुष के विषय में भी और वो क्रांति के विषय में भी सब पूरा जानकारी मिली। तो आप मन से मैं आग्रह करूं कि कभी अवश्य शुभकामना। In Delhi, AICC General Secretary K.C. Venugopal said that the Congress party was conducting a major signature campaign across the country to protest what it describes as vote chori. He noted that Rahul Gandhi had already held 3 press conferences highlighting the issue of alleged vote theft. According to Venugopal, Gandhi had experienced how the party believes vote manipulation occurred in several recent elections, including those in Karnataka, Maharashtra, Haryana and most recently Bihar. Venugopal said the campaign aimed to raise public awareness and mobilize support against what the party views as a serious threat to democratic processes. I think people are aware of that. Indian National Congress is doing a massive signature campaign against the vote chori all over India. So far we have got 5 crore 50 lakhs signature. 5 crore 50 lakhs people are signed in our memorandum to the Rashtrapati. Basically, now Rahul Gandhi ji had done 3 press conferences taking the issue of vote chori. And Rahul ji demonstrated with evidences how vote chori happening in these elections. In Karnataka, in Maharashtra, in Haryana and latestly Bihar also. So, he raised a pertinent question to the Election Commission of India. Why don't Election Commission of India is not giving machinized electoral roll? Why don't Election Commission withdraw the order of releasing giving CCTV footage after 45 days? Why don't Government of India has to withdraw the immunity powers of the Election Commissioner of India? These 3-4 pertinent questions Rahul ji asked day before yesterday to the Home Minister of India also. Home Minister of India told that Rahul ji is telling untruth. Then Rahul ji challenged the Home Minister of India, I am ready to have a debate with you on the press conferences which he had made. But Honorable Home Minister didn't reply for that also. He ran away from the challenge raised by the Rahul Gandhi ji. Now the entire country is discussing, entire people are discussing, vote chor, gaddi chor become the natural narrative. I think you are
RSS chief Mohan Bhagwat, while speaking at the unveiling of the Savarkar statue in the Andaman and Nicobar Islands, said that over the next 20 years, every Indian should work toward fulfilling the expectations Savarkar had for the country. He noted that Savarkar had described India as the Hindu Rashtra and urged people to reflect on his vision for the nation's future. सावरकर जी को तो जो रास्ता लेना पड़ा, देश पराधीन था, उस समय शस्त्राचार करना पड़ा, उसके लिए सारे खतरे उठाने पड़े, साहस करने पड़े, सब उन्होंने किया। आज तो वैसा कुछ करना पड़ने वाला नहीं, हमको कहीं जहाज से कूदना नहीं पड़ेगा सागर में, हमको कहीं काले पानी की सजा पर खपना नहीं पड़ेगा। हमको तो उससे बहुत सरल परिस्थिति मिली है। हमको अपने से, अपने परिवार से प्रारंभ करके आचरण करना है। अपने बच्चों को दिशा देनी है कि खूब कमाओ लेकिन देश के लिए कमाओ, अपने लिए मत खर्चा करो। जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ो कि देश के लिए क्या काम आने वाला है। जो सारी बातें लेकर सावरकर जी ने काम किया, उन बातों का आचरण अपने जीवन में करने का अपना प्रयास, ये होता है कि नहीं होता है, वो करना पड़ेगा। वो करने का स्मरण रहे, इसलिए हम सावरकर जी की मूर्ति बनाते हैं। हम उनके रचे हुए गीतों को अच्छा स्वर देकर प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं। हम स्वयं गाते हैं कभी कभी। इसका भान अपने को रखना पड़ेगा। सावरकर जी स्वतंत्रता के बाद भी बहुत साल तक रहे। समय समय पर उन्होंने क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बोला भी है, प्रयास भी जितना कर सकते थे उतना किया है। आज नहीं तो कम से कम 20 साल बाद प्रत्येक भारतीय को ये कहते बनना चाहिए कि सावरकर जी की जो अपेक्षा थी वो भारत के प्रत्येक जन ने पूरी करने का पूरा प्रयास किया है। पूरा प्रयास करेंगे तो बहुशः यशस्वी होंगे ही होंगे। ये हमको करना पड़ेगा और इसलिए इन सब बातों का अध्ययन करना, और वो बिना समर्पण के संभव नहीं है। अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ प्राय For the first time in Odisha, citizenship letters were handed to 35 residents of Noravangpur district under the Citizenship Amendment Act 2019. He praised Prime Minister Narendra Modi for showcasing courage in implementing the CAA to ensure safety and provide citizenship, while also acknowledging Home Minister Amit Shah's support in carrying out what he described as a significant task. Maji highlighted the importance of this step as a milestone for the state, marking Odisha's entry into the process of granting citizenship under the Act. His remarks underscore the government's commitment to extending legal recognition and protection to eligible individuals through the CAA framework. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आधार पर आज नवरंगपुर जिले के, हमारा उड़ीसा का नवरंगपुर जिले में रहने वाले 35 लोगों को नागरिकता पत्र आज प्रदान किया गया। और निश्चित रूप से जैसे जो सीएए एक्ट उसको कार्यकारी आज किया जा रहा है, निश्चित रूप से जनरली जो लोग पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां जो संख्या लघु होकर रह गए 6 कैटेगरी या रिलीजन्स के लोग, जैसे हिंदू, संख्या लघु हिंदू और सिख, बौद्ध और जैन, उनके साथ पारसी और क्रिश्चियन, वो लोग बहुत अत्याचार वहां हो रहे हैं। उनका सरकार उनके लिए कोई सिक्योरिटी या कोई अधिकार नहीं दे रहा है और उनका जीवन कभी चला जाता है और उनका कोई माँ बहन का भी इज्जत चला जाता है। इसी आधार पर वो लोग अपने को सुरक्षित रखने के लिए
अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भारत जैसा देश, वहाँ भारत को वो वहाँ कैसे भी हो वहाँ आ जाते हैं। और आज तक वहाँ किसी भी आइन उनके सपोर्ट में नहीं था जिसको को उनको भारतीयता और भारत का नागरिकता प्रदान करने के लिए। इसी आधार पर 2019 में वो सीएए के नाते जो सीएए भी आया और सीएबी का पार्लियामेंट में आने के बाद वो सीएए के एक्ट हो गया और आने के बाद वो 2024 में कार्यकारी हुआ। आज ओडिशा में पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आधार पर आज नवरंगपुर जिले के, हमारा उड़ीसा का नवरंगपुर जिले में रहने वाले 35 Chief Minister Mohan Charan Maji announced that at the Odisha Masters 2025 Badminton World Tour Super 100 tournament is being hosted in Cuttack at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium. The prestigious event began on December 9 and will continue until December 14, bringing together top players and enthusiasts from across the country and abroad. Maji highlighted the importance of such international tournaments in promoting sports culture in Odisha and showcasing the state's growing infrastructure for global sprouting events. The competition is expected to boost local enthusiasm for badminton, encouraging young talent and strengthen Odisha's reputation as a hub for major sports tournaments in India. इस शहर कटक में जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आज ओडिशा मास्टर्स 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर सुपर 100 का वहां आयोजन किया जा रहा है और इसमें से 9 तारीख से शुरू हुआ है। आज मैंने वहां आने का और उनके खिलाड़ियों के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिला। इसलिए हम सारी खिलाड़ी को और आयोजनकारी को सबको मैं बधाई देता हूँ। वहाँ 14 दिसंबर तक वो टूर्नामेंट चालू होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन और इसके साथ हमारा सरकार की क्रीड़ा और युवा सेवा तो विभाग को जो मिल के वो आयोजन किए हैं वो लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। इसी टूर्नामेंट में 16 देशों से जो प्लेयर्स खिलाड़ी का और प्लेयर्स का वहाँ योगदान वहाँ मिल रहा है। इसमें 377 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्लेयर्स लोग आए हैं सिंगल्स में, बॉयज एंड गर्ल्स जैसे बोलते हैं, महिला और वुमेन्स में और पुरुष में, उसके साथ साथ मिक्स में और उनके साथ साथ डबल्स में भी वो लोग जो भाग रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारा उड़ीसा के लिए, उड़ीसा जो खिलाड़ियों हैं जो ग्रामांचल से आते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था। इसी टूर्नामेंट के अंतर्गत निश्चित रूप से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे बालेश्वर को एक इस शहर कटक में जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आज ओडिशा मास्टर्स 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर सुपर 100 का वहाँ आयोजन किया जा रहा है और इसमें से 9 तारीख से शुरू हुआ है। आज मैंने वहाँ आने का और उनके खिलाड़ियों के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिला। इसलिए हम सारी खिलाड़ी को और आयोजनकारी को सबको मैं बधाई देता हूँ। वहाँ 14 दिसंबर तक वो टूर्नामेंट चालू होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन और इसके साथ हमारा सरकार की क्रीड़ा और युवा सेवा तो विभाग को जो मिल के वो आयोजन किए हैं वो लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। इसी टूर्नामेंट में 16 देशों से जो प्लेयर्स खिलाड़ी का और प्लेयर्स का वहाँ योगदान वहाँ मिल रहा है। इसमें
377 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्लेयर्स लोग आए हैं सिंगल्स में, बॉयज एंड गर्ल्स जैसे बोलते हैं, महिला और वुमेन्स में और पुरुष में, उसके साथ साथ मिक्स में और उनके साथ साथ डबल्स में भी वो लोग जो भाग रहे हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारा उड़ीसा के लिए, उड़ीसा जो खिलाड़ियों हैं जो ग्रामांचल से आते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था। इसी टूर्नामेंट के अंतर्गत निश्चित रूप से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे बालेश्वर को एक शहर कटक में जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आज ओडिशा मास्टर्स 2025 Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya expressed strong criticism of the Samajwadi Party, asserting that it had no future left in Uttar Pradesh politics. He remarked that the party, out of frustration, resorted to making baseless statements. Maurya emphasized that the Bharatiya Janata Party was confident of securing an even larger victory in the 2027 state elections compared to its sweeping success in 2017. His comments highlighted the BJP's determination to expand its political dominance in the state and underscored the party's belief that opposition forces were weakening. The statement added momentum to BJP's narrative of continued growth and electoral strength, positioning 2027 as a landmark year for its campaign in Uttar Pradesh. कोई भविष्य नहीं बचा है। वो बौखलाहट में बयान रोज देते हैं, आप सब लोग चला देते हो, लेकिन मैं आपको यह बात जरूर कह सकता हूं कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करेंगे। यही जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार इतना काम कर रही है कि वोटों से हम लोगों की झोली भर जाएगी। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है। वो बौखलाहट में बयान रोज देते हैं, आप सब लोग चला देते हो, लेकिन मैं आपको यह बात जरूर कह सकता हूं कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करेंगे। यही जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार इतना काम कर रही है कि वोटों से हम लोगों की झोली भर जाएगी। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है। वो बौखलाहट में बयान रोज देते हैं, आप सब लोग चला देते हो, लेकिन मैं आपको यह बात जरूर कह सकता हूं कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करेंगे। यही जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार इतना। TMC leader Kunal Ghosh reacted sharply to comments made by the BJP, asking whether Mamata Banerjee would also be required to prove her citizenship. He stressed that such demands were meaningless and carried no weight. Ghosh maintained that the statements issued by the BJP did not make any difference to the political reality in West Bengal. He emphasized that Mamata Banerjee's leadership and legitimacy were unquestionable, dismissing attempts to challenge her standing. His remarks reflected the Trinamool Congress firm stance against what they viewed as unnecessary political rhetoric. The statement added to ongoing tensions between the ruling party in the state and the BJP, highlighting the charged atmosphere of Bengal's political discourse. साबित करना होगा ममता बनर्जी इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है। 7 टाइम्स का MP, 4 टाइम्स का सेंट्रल मिनिस्टर, 2 टाइम का रेलवे मिनिस्टर, 3 टाइम का चीफ मिनिस्टर। भाजपा क्या बोल रहा है, उससे क्या आता जाता है। ममता बनर्जी को क्या नई तरह के वो साबित करना पड़ेगा, वो इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है। ममता बनर्जी को साबित करना पड़ेगा। देखिए, ममता बनर्जी को क्या ये साबित करना होगा ममता बनर्जी इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है। 7 टाइम्स का MP, 4 टाइम्स का सेंट्रल मिनिस्टर,
2 टाइम का रेलवे मिनिस्टर, 3 टाइम का चीफ मिनिस्टर। भाजपा क्या बोल रहा है, उससे क्या आता जाता है? ममता बनर्जी को क्या नई तरह के वो साबित करना पड़ेगा, वो इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है? ममता बनर्जी को साबित करना पड़ेगा। देखिए, ममता बनर्जी को क्या ये साबित करना होगा ममता बनर्जी इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है? 7 टाइम्स का एमपी, 4 टाइम्स का सेंट्रल मिनिस्टर, 2 टाइम का रेलवे मिनिस्टर, 3 टाइम का चीफ मिनिस्टर। भाजपा क्या बोल रहा है, उससे क्या आता जाता है? ममता बनर्जी को क्या नई तरह के वो साबित करना पड़ेगा, वो इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है? ममता बनर्जी को साबित करना पड़ेगा। देखिए, ममता बनर्जी को क्या ये साबित करना होगा In the Rajya Sabha, Union Minister Shivraj Singh Chauhan stated that the Punjab government had failed to implement the Prime Minister Fasal Bima Yojana. He remarked that, in his view, this lapse had left farmers vulnerable during the recent floods. Chauhan suggested that many of the heavy losses suffered by farmers could have been avoided if the scheme had been put into effect in the state, and emphasized that the program was designed precisely to protect cultivators from such unforeseen natural calamities, and argued that its non-implementation amounted to a misled opportunity to safeguard livelihoods. His comments added to the ongoing debate over agricultural policies and state-center coordination. मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पर्ल ड्रॉप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हाँ, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रीदेव संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है उससे किसानों को और सुरक्षा। In Raipur, Chhattisgarh, BJP leader Ajay Chandrakar reacted strongly to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's remarks about Union Home Minister Amit Shah. He said that, in his view, Banerjee behaved like Tarka and Susa for Bengal, invoking mythological references to criticize her political style. Chandrakar argued that she should have exercised restraint before commenting on the country's home minister and should reflect on what Amit Shah had contributed to West Bengal. He further stated that while Banerjee might pressure the Congress regarding leadership within the India bloc, she had no right to use language that he considered abusive toward the BJP or its leadership. His remarks added to the ongoing political tensions between the two parties. समझ रहे हो ना, अब वो बंगाल के लिए ताड़का और तोरसा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए टिप्पणी करने के लिए पहुंचना चाहिए। बंगाल को उन्होंने दिया क्या, ये सोचना चाहिए। समझ रहे हैं ना?
और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है ना, इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घुसपैठिए तय नहीं कर सकते, वैसी ममता जी तय नहीं कर सकती कि देश उनके धमकी से चलेगा। वो जमाना लद गया। वो कांग्रेस को दे सकती धमकी, इंडिया गठबंधन में मैं नेतृत्व करूंगी करके। भाजपा नेतृत्व को किसी तरह के अपशब्द कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वो खुद तो ताड़का और सुरसा जैसा समझ रहे हो ना। अब वो बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसी देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए टिप्पणी करने के लिए पहुंचना चाहिए। बंगाल को उन्होंने दिया क्या, ये सोचना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है ना, इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। In Delhi, after distributing appointment letters to families affected by the 1984 Sikh riots, Chief Minister Rekha Gupta said that Delhi government had taken a significant step toward healing the long-standing wounds of the victims. She explained that several rules had been simplified to ease the pain of these families and to ensure that one member from each household received a job. Gupta noted that for decades, many Sikh families